खत्म हो गई और आज के दिन उस कंपनी के पास अगले 20 साल के ऑर्डर्स ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। हमारे दिमाग में हाउस इज ऑलवेज एन एसेट, बट आपने कितने लोगों को देखा है अपना घर बेचते हुए? सो डेस्टिनी मतलब दैट वाज आई जस्ट गॉट लकी, गॉड हैज बीन काइंड कि मीडिया हाउसेस वाले दोस्त हैं। Even after graduating in 2014, I never took a job. So, if you don't took a job, don't take a job. Entrepreneurship comes naturally to you. इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, इन्वेस्ट जा रहा था सारा पैसा, और जब एक्चुअली उनकी फैमिली को रिक्वायरमेंट थी पैसा वो निकाल ही नहीं पा रहे थे। Today we have with us Rishabh Jain, creator of Labor Law Advisor, a platform with over 8 million subscribers. He is also an entrepreneur running ventures like Creo and Jagruk.shop. An IIT Bombay graduate and a civil engineer, he is now pursuing LLB while continuing to educate and inspire through his work at LLA Professional Training Institute. Rishabh has been a sought-after speaker delivering talks at TEDx, Josh Talks, IITs, and various other platforms. We are excited to hear his insights on entrepreneurship and financial literacy. Our second guest, Anant Ladda, a chartered accountant, CFA, certified financial planner, and founder of Invest Aaj for Kal. He is a national bestseller author, featured in Forbes Top Creator List, Josh Talks, and TEDx Talks. He has also been featured in various national platforms like CNBC Awaaz, NDTV, ET Now as a financial expert. We are excited to hear his insights on financial literacy. Hi, sir. Welcome to Leaders Launch. So, I'm delighted to have you both here. So, my question is to Rishabh sir first. From being an IITian civil engineer to being an entrepreneur and an educator for millions of people, what was the turning point where you realized that labor law, education, and entrepreneurship were the paths you wanted to pursue? So, even after graduating in 2014, I never took a job. So, if you don't took a job, don't take a job. Entrepreneurship comes naturally to you. Freelancing का उस समय इतना जमाना नहीं था probably. So yeah, so that's that. But why labor laws? Because my family business is into labor law consulting since last 50 years. And just like any family, they also wanted that one of their kids should continue the legacy forward. So in 2017, when I was doing the other venture, which was not running so successfully, and I was not having enough money back then the family was like, why don't you at least give it a try? So at that point of time, I started reading about labor laws, and when I read about those labor laws, I found it really boring, just like the name says. But I said that if I just read, and I probably won't be able to because बहुत sleepy हो जाता था. So I started reading about labor laws, and simultaneously I thought that let's make some videos out of it, and never thought about that how many people it will reach or how many millions of subscribers I have. I just simply started making videos. So that's why I call myself an accidental content creator. So labor laws because of family, and content creation because of that accident. Okay, that's excellent. Now, my question is to you, Anand sir. Your expertise span across being a CA, CFA, certified financial planner, and now you are the founder of Invest Aaj for Kal. So, I wanted to know what was your driving force behind founding Invest Aaj for Kal? And you have been appeared on a lot of media channels. So, how did you approach these channels to advocate people about financial literacy? फर्स्टली हाय, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। हम लोग कन्वर्सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आई थिंक इन्वेस्ट आज फॉर कल फॉर मी वाज नेवर अ डेस्टिनेशन, ये एक जर्नी थी। हम लोग जब सोचते ना कि ये कैसे हुआ, तो हमें रियलाइज़ होता है कि कोई एक पल नहीं था जहाँ पे जो हम आज कर रहे हैं वहाँ तक पहुँच गए थे। वो एक कंप्लीट पाथ था, एक जर्नी थी, जिसका इवेंचुअल रिजल्ट शायद हम आज भी खोज रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमें भी नहीं पता। मेरा मेन माइंडसेट था कि हम लोग मुंबई से थे, मैं मुंबई में आई वाज स्टडिंग, मुंबई में मेरा बहुत अच्छा सर्कल था, सब लोग बहुत वेल टू डू फाइनेंशियल टर्म्स में एटलीस्ट नॉलेज वाइज काफ़ी अच्छे थे, तो आई थॉट कि बेसिक फाइनेंस सबके क्लियर थे। पर मैंने रीच्ड कोटा और मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, देन आई रियलाइज कि बेसिक फाइनेंस अभी भी लोगों को नहीं पता है, अभी भी लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स नहीं पता है, लोग अभी भी वही इंश्योरेंस की गलतियाँ करे जा रहे हैं, लोग अभी भी ट्रेडिशनल प्लान में फंसते जा रहे हैं, लोग अभी भी कोई भी एक पर्सन आके उनको इमोशनली अटैच करके कोई भी गलत पुट चिपका के जा रहा है, जिसके लिए उनकी फैमिली बाद में बहुत सफ़र कर रही है। मेरे साथ भी इंसिडेंट्स ऐसे कुछ हुए कि कुछ लोगों को कुछ पैसे मिले जो उनकी लाइफ की प्रोबेबली पूरी सेविंग थी,
पर उन्होंने उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया या वेस्ट में डाल दिया। एक होता है इन्वेस्ट, एक होता है इन वेस्ट। वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, इन वेस्ट जा रहा था सारा पैसा, और जब एक्चुअली उनकी फैमिली को रिक्वायरमेंट थी पैसा, वो निकाल ही नहीं पा रहे थे। एंड उनकी प्रोबेबली वाइफ डेथ बेड पे थी, फिर भी ही दैट गाय वाज नॉट एबल टू हेल्प हर आउट बिकॉज उन्होंने कोई गलत जगह पैसा डाल दिया। तो आई रियलाइज़ किया फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी फ्री सेशंस करना हमने स्टार्ट किया था ऑल ओवर दी राजस्थान। रफली 200 सेशन करे थे। फिजिकली करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि और लोगों तक पैसे कैसे पहुंचा जाए। वहाँ पे ये इन्वेस्ट आज फॉर कल आया कि आप इन्वेस्ट आज करोगे फॉर अ बेटर कल, दैट टू फॉर अ राइट ऑब्जेक्टिव। मेरा मोटिव भी अगर आप बोलो या फिर एक लाइन बोलो जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो ये होती है, कन्वर्टिंग इंडिया फ्रॉम कंट्री ऑफ सेवर्स टू कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स। हम सेवर सब हैं। इंडिया में 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका था, हाउसिंग बबल हुआ था, वर्ल्ड पूरा क्रैश हो गया था। इंडिया बचा हुआ था बिकॉज इंडिया के पास जो विमेन है उनका स्त्री धन है, गोल्ड है, उसने सेव किया था हमारे इंडियंस को फाइनेंशियल क्राइसिस से 2008 के। तो हम लोग इन्वेस्ट तो नहीं, सेविंग हमेशा करते थे। अब वो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना वॉज अ जॉब। तो उसको स्प्रेड करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव था, वहाँ से इन्वेस्ट आज फॉर कल स्टार्ट हुआ था। मीडिया पर्सन को अप्रोच करना, देखो मैंने कभी भी अप्रोच नहीं किया, ये एक लूप बनता गया। व्हेन आई वाज इन मुंबई, आई वाज डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम बिग फोर। उसके बाद कुछ अच्छी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज में आई वाज वर्किंग, वहाँ पे इंटर्नशिप्स करी, लोगों से मिलना हुआ, तो वहाँ पे ये सब दोस्त बने थे। उनको भी नहीं पता था, ना मुझे पता था कि एक दिन हम लोग साथ में काम कर रहे होंगे। हम लोग सिर्फ विदाउट एनी इंटेंशन कि हम एक दूसरे का भी काम आ पाएंगे, हम लोग दोस्त बने थे सारे। प्रोबेबली आप 3-4 मीडिया हाउसेस के कुछ लोगों से, कुछ एंकर से दोस्त बनते हो, फिर वो आपको कनेक्ट करते जाते हैं, एंड दी लूप कीप्स ऑन गोइंग ऑन। सो हम लोग कुछ दोस्त थे, फिर वो ग्रो करे लाइफ में, मैं ग्रो किया, एंड इवेंचुअली ऐसा हो गया कि दे कुड कॉल मी ऑन देयर शोज़ एंड आई कुड बी अ गेस्ट ऑन देयर शोज़। तो ऐसे करते करते ये जर्नी आई। सो काफ़ी लोगों को लगता है कि शायद मेरी कोई पीआर एजेंसी होगी, कोई एजेंसी नहीं है। कोई पर्सन हैंडल करता हो, कोई पर्सन हैंडल नहीं करता। आज भी अभी जस्ट मैं आ रहा था, एक साक्षी फ्रॉम NDTV, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, उनका मैसेज आया था, एंड प्रोबेबली हमें आज शूट भी करना है कुछ उनके साथ। सो ये सिर्फ दोस्त है सारे मेरे। फिर एक दोस्त, दो दोस्त करते करते फिर वो सर्कल बनता गया, एंड इवेंचुअली आई फील जब आप दोस्ती करते हो विदाउट एनी पर्पस, तो इवेंचुअली रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरे को पता भी नहीं था कभी मैं फाइनेंस में आऊँगा या मैं यूट्यूब कर रहा हूँ या मुझे कुछ लोग जानेंगे भी सही। मैंने दोस्ती करी थी बिकॉज आई लव टू मीट पीपल, आई लव टू कनेक्ट। सो डेस्टिनी, मतलब दैट वाज, आई जस्ट गॉट लकी, गॉड हैज़ बीन काइंड कि मीडिया हाउसेस वाले दोस्त हैं। दैट्स इनक्रेडिबल। जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत दिक्कत है, एक गैप है इंडिया में। सो बट जैसे इस जनरेशन के साथ हम देख रहे हैं कि लोग थोड़े टेक savvy हो रहे हैं, फिन इन्फ्लुएंसर्स बहुत आ रहे हैं, तो लोग थोड़े एजुकेटेड हो पा रहे हैं, बट देयर इज़ स्टिल सम गैप। जैसे हम लोग, तो हमें पता है कि म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, वी जस्ट नीड टू रिसर्च एंड गेट आवर बेसिक्स क्लियर। बट पेरेंट्स को कन्विंस करना अभी भी थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि दे रिजॉर्ट टू दोज ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स, FD हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर रियल इस्टेट हो गया। सो व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस जो आपको लगता है उस जनरेशन गैप की वजह से आ रहे हैं फाइनेंस में? मैम देखिए, जनरेशन गैप एक अलग चीज़ होती है, उस पर मैं डिस्कस ज़रूर करता हूँ। मोर देन दैट, ह्यूमन बिहेवियर सेम रहता है। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे आज भी डीमैट अकाउंट से ज़्यादा XYZ फैंटेसी ऐप में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन सी क्रिकेट टीम ज़्यादा बनाएगी और सट्टा मार रहे हैं, तो वहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत तो अभी भी बहुत है। वरना जो ये इतनी बेटिंग ऐप्स है, इतनी फैंटेसी ऐप्स है, जो सपोजिटली आपका अपफ्रंट ही 30% काट के ही आपको पैसा देती है। मतलब आप सबसे पहले 100 रुपये लेके आते हो, आपको 70 रुपये मिलते हैं, उसको आपको बनाना है पहले 100 रुपये, उसके बाद वापस से टैक्स देना है, फिर भी दुनिया करते जा रही है, इंडियंस इतने कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर हम ऊपर वाली जनरेशन की बात करें, देखो एक कंसेप्ट होता है फियर वर्सेस ग्रीड। जैसे अगर आपको आज आपकी ड्रीम कार कौन सी है? Porsche 911। Porsche 911। तो आपने ले ली, एक बार ली, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बहुत खुशी होगी। फिर 1 महीने बाद वापस ली, कैसा लगेगा? उतनी खुशी नहीं होगी जितनी पहले फिर हुई तीसरी थी। बार ली, फिर क्या होगा? फिर इतनी खुशी नहीं होगी। एक चीज़ जिससे आपको प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रही है, वो जब बार बार आपको मिलती रहती है, उससे प्लेजर या उससे जो खुशी मिलती है वो कम होती रहती है। चेंज करते सिनेरियो, वो जो सॉकेट है पीछे, उसमें सपोज करते करंट आ रहा है, आपने हाथ लगा लिया, आपको क्या हुआ? करंट लगा, करंट लगा, डर लगा। सेकेंड बार आपने हाथ लगाया, फिर आपको पता है कि उसमें से होता है, आपको डर लग रहा है, अब आपने हाथ लगाया तो फिर थोड़ा मतलब पता होगा, मैं प्रिपेयर होंगी नहीं, पर आप ऑलरेडी। हाथ लगाओगे? हाँ, नहीं। नहीं लगाओगे, आप डरोगे। तीसरी बार मैं बोलूंगा तो आप और डरोगे, दूसरों को भी बोलोगे कि मत लगाना। एक चीज़ जिससे आपको फियर होता है, उसका फियर बढ़ता जाता है, प्लेजर नहीं मिलता। मतलब जो फियर से जो डर होता है वो बढ़ता जाता है, बट जो प्लेजर से जो गेन होता है, जो खुशी होती है, वो कम होती जाती है। फियर वर्सेस गेन का कंसेप्ट है।
स्टॉक मार्केट के गेन सेम टाइप के आपको बार बार होते रहेंगे, हर बार उसकी खुशी आपकी कम होती रहेगी, पर एक बार आपको लॉस हो गया उसका पेन हर बार ज़्यादा होगा। अब 1990s में हमारे जो पापा थे, दादाजी थे, उनके सामने हर्षद मेहता स्कैम आया, केतन पारिक स्कैम आया, फिर कोई स्कैम आया, स्कैम पे स्कैम आ रहे थे, इतने स्कैम आए कि उनको लगता है कि ये स्कैम ही होता है। बट उस समय हम लोग डीमेटेलाइज नहीं थे, हमारे पास सिस्टम्स नहीं थे, हमारे पास सेबी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतने कंप्लाइंसेस नहीं थे, हम आज जहाँ पे वहाँ पे नहीं थे। पर उनके मन का डर अभी भी इतना ही है, क्योंकि उनको पता है कि उस सॉकेट से करंट लगता है। उनको ये नहीं पता कि अब हमने अर्थिंग करवा दी है उसकी, सॉकेट की हमने अर्थिंग करा दी, अब करंट नहीं लगेगा। पर उनके मन का डर अभी इतनी आसानी से नहीं हटेगा, इसकी वजह से वो बोलते हैं। और ये जनरेशनल गैप है। इसका आंसर सिंपल सा होता है, आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, इवेंचुअली आपकी जो फैमिली है वो आपको सपोर्ट करने लग जाएगी। सीधा उनको बोलोगे कि पापा जी आपकी सारी जायदाद मुझे दे दो, मैं इन्वेस्ट करूंगा, नॉट पॉसिबल। दैट इज़ ट्रू। सो जैसे मैंने बात की कि हम रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की तरफ भी थोड़ा जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी वी हैव सीन दैट नाउ वी आर नॉट बीइंग गिविंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. सो माय क्वेश्चन इज टू यू ऋषभ सर, हाउ कैन अ पर्सन who wants to buy a house, whether they should buy a house or rent a house? तो बाय एंड रेंट अ हाउस का डिसीजन का इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल बात है कि घर, अभी जैसे यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे सेशन में भी, तब किसी ने पूछा कि सबसे पहले क्या करोगे जॉब लेते ही, तो वो बोले मैं घर खरीदूंगा। दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है एसेट, एक लायबिलिटी। हमारे दिमाग में हाउस इज़ ऑलवेज एन एसेट, बट आपने कितने लोगों को देखा है अपना घर बेचते हुए? Nobody, everyone buys their house and keeps their house. It's not an asset because आप उसको कभी बेचोगे ही नहीं. It has some emotional value या whatever, but it is an asset. It is not an asset. So घर खरीदने या नहीं खरीदने का डिसीजन आपको फिनेंशियल सेंस से ज़्यादा, ये इन्फ्लेशन ये सारे सेंस से ज़्यादा अपने इमोशनल उसके हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि पहला घर वो होता है। उसके बाद जो आप से दूसरे लैंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या दूसरी प्रॉपर्टीज़ ले रहे हो, उसमें आप ये सारी गणित करते हो कि इन्फ्लेशन कम ज़्यादा होगा या नहीं, कितना कैपिटल गेन मुझे मिलेगा, XIR कितना हो पाएगा। वो जिस तरह से बाकी एसेट क्लासेस में आपसे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, ETF में, किसी में भी एनालिसिस करते हो, उसी तरह से एनालिसिस करो। लेकिन जो घर का डिसीजन है, दैट इज़ प्योरली एन इमोशनल डिसीजन। अगर आपको बहुत दिल से लगता है कि नहीं मुझे अपना ही घर चाहिए जिसके अंदर मैं अपने हिसाब से चीज़ें कर सकूँ, go ahead and buy your house, because emotions की तो कोई कीमत ही नहीं होती। That is true. So, as a beginner who wants to start their investment journey, we are well aware about the mutual funds and stock. But how do we start our journey? How do we research? How do we select a sector to where to invest? Yes. देखो, स्टार्टिंग जर्नी सबसे डिफिकल्ट होती है। वो कहते हैं ना कि पहला कदम बच्चा बहुत डिफिकल्टी से रखता है। एक बार वो कदम रख लिया तो फिर चलने में इतनी दिक्कत नहीं आती, पर पहला कदम सबसे डिफिकल्ट, और सब डरते कि कहीं गिर नहीं जाए। तो स्टार्ट करने के लिए आपके मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले आप स्टार्ट, अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड मैंने अवॉइड कर दिया, वो आपने कर लिया, ये मैंने एज्यूम किया। सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड्स की SIP स्टार्ट करिए। SIPs में आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आपको पता है तो आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको नहीं एडवाइजर के एडवाइस चाहिए और पता भी नहीं है तो इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। सबसे पहले SIP करना स्टार्ट कीजिए। सेकंड, आप म्यूचुअल फंड्स में जब कंफर्ट होने लग जाए तो आप IPOs में काम करना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ IPOs में इन्वेस्ट कीजिए और उसको लिस्टिंग गेन के पर्पज से यूज़ कीजिए। उसको आपको बाय एंड होल्ड नहीं, बाय एंड फॉरगेट नहीं करना है। लगाया IPO आया, लिस्टिंग गेन लिया, बात खत्म। आप IPOs से थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए, नेक्स्ट आप जा सकते हो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग पे, इन्वेस्टिंग पे। वहाँ पे आप एक स्टॉक को बाय करोगे, कंप्लीट स्विंग को कैप्चर करने के लिए प्रोबेबली जो आपके लिए 8 से 9 वीक के आसपास, 2-1 महीने के टाइम होराइजन से आप बाय करोगे। कोई इंट्राडे नहीं, कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म नहीं, एक स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे। स्विंग ट्रेडिंग में आप कंफर्ट हो जाओगे तो फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना स्टार्ट होंगे कि टैक्टिकल कॉल, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन की ट्रेडिंग। जब आपको लगता है ये भी मैंने मास्टरी कर दी तो फिर आप इंट्राडे में आओगे। जब आपको लगता है मेरे को अब इंट्राडे भी समझ आ गया, फिर आप फ्यूचर ऑप्शंस कर सकते हो। ये एक लाइन है। आज के दिन हम रिवर्स स्टार्ट करते हैं फ्यूचर ऑप्शन से और खत्म होता है बैंक अकाउंट 0 पे। तो ये गड़बड़ हो जाती है। आपकी सीक्वेंस सही होनी चाहिए। आपने पहले ऊपर के 3-4 पॉइंट सॉर्ट करे, आपके म्यूचुअल फंड से गोल मैप हो गए, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सॉर्टेड हो गए, फिर आप जाके कहीं ट्रेडिंग में जाते हो, स्टॉक्स में जाते हो, इंट्राडे में जाते हो, शॉर्ट टर्म में जाते हो, फिर जाके आप FNO में जाते हो, तो आपके लिए ऑप्शन रहता है। और वो कहते भी, एक डायलॉग भी, अगर आप ब्लाइंडली अगर फ्यूचर करोगे तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ऑप्शंस में आपके पास बहुत ऑप्शन रहेंगे, प्रोवाइडेड आपको यूज़ करना आता है, पर वो सीखना पड़ेगा। तो पहले सीखो, फिर इवेंचुअली वहाँ तक पहुँचो। राइट, ये गलती मैं कर चुकी हूँ, बट थैंक्स फॉर द एडवाइस। अब जैसे आपने बताया इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है, धीरे धीरे वी हैव टू पेस अप।
but we just wanted to know what are the tax saving tips when we are investing. तो देखिए, लेट्स स्पीक स्पेसिफिकली फॉर अ सैलरीड एम्प्लॉय, बिकॉज बिजनेस वालों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं टैक्स बचाने के. गवर्नमेंट recently has introduced a new tax regime, and in last 2 or 3 budgets they are trying to make it stronger and stronger. It won't be a surprise that within 1 or 2 years the old regime disappears altogether. Whatever tax saving options, limited tax saving options a salaried employed had, it had like in terms of ATC or other tax saving options, they are all part of the old tax regime. बट ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कुछ समय बाद होगा ही नहीं, एंड इट विल बिकम अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर वेयर यू अर्न समथिंग, you pay tax, whatever you invest, whatever insurance you buy, whatever premium you pay, nothing would matter. In India, still a lot of investments are driven by the tax saving aspects. For example, people invest in NPS or PPF or ELSS because they want Sorry to interrupt, what is NPS? It is a national pension scheme, Okay. which is which sort of helps an employee not only accumulate money but sort of also invest towards his pension, national pension scheme. It is sort of a sister scheme to Provident Fund scheme. So all these schemes people invest in because they want to take the benefit of ATC or ATCCD 1,50,000, 50,000 limits. I have this fear that once these schemes would go away, people will be losing the incentives to invest in these schemes, which are sort of quite stable and give you a specified return and are relatively safe because they are government backed. And more of that money will either be spent in unplanned expenses or will be invested in such risky assets which they do not sort of understand fully, which Anant has also mentioned. So, as long as the old tax regime is going on, I would urge people to sort of file their returns in old tax regime, and जो भी investment options हैं उसके साथ वो अपने आप tax savings भी करवा देंगे. And even after so many benefits in the sort of new tax regime, even still if a person diligently follow all the check marks in the old tax regime, they'll still be able to save more money by filing tax in that particular regime, but probably for 1 or 2 years more max. Okay, that's great. So, while we are selecting stocks, there's this herd behavior कि न्यूज़ में देख लिया EVs बढ़ रहे हैं, एनर्जी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो वी आर इन्वेस्टिंग. दे डोंट डू अ प्रॉपर एनालिसिस. So, when we are selecting a stock, how do we analyze the sector? And as we saw that last year defense sector को बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिला था. एक साल में ही 200 रिटर्न्स मिल रहे थे. But मतलब how do we analyze the sectors, where to invest, और how do we analyze the trend, next year क्या trend होगा, कहाँ पे हमें abnormal returns मिल सकते हैं? देखो, अगर आप abnormal returns वाले sectors ढूंढना चाह रहे हो तो पास्ट रिटर्न्स के बेसिस में नहीं, पास्ट अंडर परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको ढूंढना होता है कि कौन सा सेगमेंट या कौन सा सेक्टर अभी अंडर परफॉर्म किया है, क्या उसके अंडर परफॉर्मेंस का कोई कारण है, क्या जो मीन डिविएशन का कंसेप्ट आई एम वेरी श्योर सब लोग समझते होंगे बिकॉज फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं. सो क्या वो मीन डिविएशन या मीन रिवर्जन के कंसेप्ट में अप्लाई हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल फार्मा 2020 में पिछले 5 साल का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर था. कोविड सामने था, एक सिचुएशन सामने थी, तो वहाँ से लग रहा था कि फार्मा में टेक्टिकल कॉल हो सकता है. 2021 में PSU पिछले 7-8 साल का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर था, तो वहाँ पे एक टेक्टिकल कॉल लग रहा था कि पूरा मार्केट भाग चुका है, PSUs अभी भी यहाँ पे ये मीन रिवर्जन हो सकता है. आज के अभी डिफेंस की बात करेंगे तो डिफेंस एक बहुत लंबे समय तक, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ एक बड़ी कंपनीज है, जैसे एक कंपनी एच से स्टार्ट होती है जो गवर्नमेंट कंपनी है, जिसको 2019 में OFS भी आए थे और सब लोग बहुत परेशान हुए थे. कोई गैस कर सकता तो कमेंट में डाल देगा. बहुत परेशान हुए थे लोग कि उसका जो टॉप था वो आ ही नहीं रहा था. 5-5 साल तक वो बिल्कुल परेशान हो रखे थे कि ये कभी आएगी नहीं, सबको लग रहा था ख़त्म हो गई. और आज के दिन उस कंपनी के पास अगले 20 साल के ऑर्डर्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है और उसको 20 साल के ऑर्डर की पाइपलाइन की वैल्यूएशन आज ऑलरेडी मिल चुकी है, बिकॉज वो इतना भाग गया पिछले 1 साल में. लोगों को दिख रहा था ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगले 20 साल तक उसके पास काम करने की जगह नहीं है. जितना वो काम कर रहा है, जो कर रहा है, जैसे करता रहेगा, बस इतनी ही उसके पास कैपेसिटी है. और उसको हमने अगले 20 साल की वैल्यूएशन आज दे दी है, बिकॉज सब फ्यूचर पे काम करते हैं. पर वही 5 साल पहले जाओगे तो वो एक ऐसा स्टॉक था शायद जिसको कोई टच भी नहीं कर रहा था. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो पिछले समय चला है और जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर चुका है,
अगर उस सेक्टर में आप सोच रहे हो कि आपको एक बड़ा रिटर्न्स मिल जाएंगे तो आप गलती कर रहे हो। मीन रिवर्जन का कंसेप्ट कि कौन सा नहीं चल रहा, मैंने बीच में कई बार बात करी थी कि लाइफ इंश्योरेंस हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर डिस्कस हुआ था। मैं स्टॉक्स के नाम कभी नहीं लेता, कभी एडवाइस, कभी टिप नहीं देता, बट मैं इस सेक्टोरल चीज़ें कैसे काम करती है, सेक्टर्स कैसे काम करते हैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। लाइफ इंश्योरेंस एज अ सेगमेंट, क्या आदमी इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस लेता रहेगा? लेता रहेगा। क्या लाइफ इंश्योरेंस ऐसे सेगमेंट चलेगा? चलेगा। फिर लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी सपोजिटली अचानक से पूरे मार्केट से बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ले लिया था मतलब आपके स्टॉक्स कचरा है, आपका पोर्टफोलियो चल ही नहीं रहा। एक बहुत ज़्यादा डाइवर्जन हो चुका था। जब ऐसा डाइवर्जन होता है तब या तो वो डाइवर्जन कंटिन्यू होता रहेगा, कंटिन्यू होगा तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, वरना मीन रिवर्ट होगा तो बहुत स्ट्रांगली होगा। तो जब भी आप सेक्टरल कॉल्स लेना चाह रहे हो अपने पोर्टफोलियो में या स्टॉक्स में या अपने म्यूचुअल फंड्स में, तब आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अभी पिछले एक साल में बहुत शॉकिंग डेटा है कि सबसे ज़्यादा बिक रहा है म्यूचुअल फंड्स में सेक्टर फंड्स, क्योंकि सबको लग रहा है कि अब हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, हम सिर्फ सेक्टर्स में काम करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है, और सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा वो चल रहे हैं, वो बिक रहे हैं जो दिख रहे हैं अभी पिछले में। अभी एक म्यूचुअल फंड का मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, इंडिया के टॉप 6, 5 नहीं 6 म्यूचुअल फंड्स में से एक है। उन्होंने ये दिखा के अभी एडवर्टाइजमेंट किया है अपने एक फंड का कि पिछले एक साल में उसके 66% रिटर्न्स आए हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आपने पिछले 5 साल का और 10 साल का रिटर्न क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि 10 साल में जाती है आपको 15% रिटर्न दिख रहे हैं, इन्वेस्टर शायद इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपने सिर्फ एक इतने बड़े फंड हाउस होने के बावजूद आपने ये टैक्टिकल स्ट्रैटेजी ली। मैंने फंड हाउस को भी मैसेज किया, मैं नाम कहीं पे भी नहीं ले सकता बिकॉज ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगता, नहीं है, हम लोग ऐसे फॉलो नहीं करते, पर ये गलत स्ट्रैटेजी है। एक साल का रिटर्न दिखा के नहीं करना चाहिए, ना ही इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ही म्यूचुअल फंड हाउस को बोलना चाहिए। म्यूचुअल फंड हाउस को बोलना चाहिए जो अंडर परफॉर्मिंग सेगमेंट्स है, सेक्टर्स है, वहाँ पे दिखाना चाहिए कि भाई यहाँ पे तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। इन्वेस्टर को सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। पिछले एक साल में जो हुआ है वो आगे होता रहेगा। आप जब गाड़ी चलाते हो आप आगे देख के चलाते हो, पीछे देख के चलाते हो? आगे दोनों। आगे। अब आपने पीछे वाले मिरर में देख के पूरी गाड़ी चला रहे हो तो कैसा लगेगा? ठुक जाएगी गाड़ी, क्योंकि आप देख ही पीछे रहे हो। सो इन्वेस्ट करते वक्त आगे देखो, पीछे नहीं। Okay. So, according to you, what are the 5 growing sectors? इंडिया में हर एक सेगमेंट काम करेगा, बट वो रोटेट होता रहेगा। मैं 5 का नाम लूंगा, यहाँ पे 50 रेडी है। तो इंडिया एज ए इकोनॉमी जब ग्रो करेगी, अगर कोई कंट्री ग्रो कर रही है और वो डेवलपिंग से डेवलप होने की साइड में जा रही है, सब कुछ चलेगा। अब किस समय कौन सा चलेगा, प्रोबेबली आज मैंने कुछ चीज़ बोल दी, वो 1 महीने बाद नहीं चलेगी वो सेक्टर। पर जो भी डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, जो भी इंफ्रा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज है, जो भी कंजम्पशन से रिलेटेड कंपनीज है, वो इंडिया में चलेगी। Okay. So my question is to both of you कि आजकल EV की इतनी बातें हो रही हैं, do you think EV is the solution for sustainability? देखो, ईवी सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर आप दिन के 100-150 किलोमीटर से ऊपर चल रहे हो तब तो ईवी इज़ मेकिंग सेंस, अदरवाइज इट्स नॉट मेकिंग सेंस, बिकॉज आपको बैटरी भी चेंज करना पड़ता है और बहुत क्वेश्चन है। अभी एक और कुछ तो एक ईवी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर मैंने सुना था कि बैटरी का डिस्पोजल करना भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो चुका है, जिसके लिए हम ईवी करके हम लोग बचा देते हैं एनवायरनमेंट, बट वो एक बड़ा सस्टेनेबल इशू हो चुका है। सो आई थिंक अभी ईवी में जितना ओवरसोल्ड कंसेप्ट हो गया है, इतना ज़्यादा बिक चुका है कि अब यहाँ से ईवी के बारे में बेट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर आप 4 साल पहले बोलते तो हाँ यार ईवी एक बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था, आज आई वुड से कि आई एम एक्साइटेड अबाउट ईवी, बट आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट इनोवेशन इन ईवी। इनोवेशन होगा ईवी में भी, बिकॉज जब कोई एक सेक्टर निकलता है, ऐसा नहीं होता कि सीधा वो सेक्टर बन जाता है। सेक्टर्स में मल्टीपल जे कर्व्स बनते हैं, अचानक से इनोवेशन, फिर इनोवेशन, फिर इनोवेशन। अभी तक ईवी में हमने सेकेंड लेवल ऑफ इनोवेशन नहीं देखा है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ पर्सनली। Okay. So Rishabh sir, you have been an entrepreneur. आपने 7 वेंचर्स स्टार्ट किए थे, नाउ 2 ऑफ देम आर सर्वाइविंग एंड दे आर डूइंग ग्रेट। सो सर, एज एन एंटरप्रेन्योर, किसी बच्चे को, हम जैसे बच्चों को अगर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो व्हाट वुड यू एडवाइज अस, एंड कहाँ जाना चाहिए, किस सेक्टर में हमें अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्टअप या कंटेंट क्रिएशन, इसमें हम इसको स्टॉक मार्केट की तरह नहीं देख सकते कि यार ये अच्छा भाग रहा है, चलो ये करते हैं। मैं कंटेंट क्रिएशन का अगर एग्जांपल लूँ तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, अरे यार फिनेंस वाले क्रिएटर अच्छा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे, चलो फिनेंस में करते हैं। टेक वाले अच्छा कर रहे, चलो टेक बनाने लग जाते हैं। इट्स नेवर लाइक दैट। अगर ऐसा ही होता तो हम जो लेबर लॉज, विच इज़ नॉट इवन लॉ का भी आधा पेपर होता है, वो लॉ के 3 साल में जो 27 पेपर्स होता है उसमें से एक का पेपर का आधा पार्ट होता है, उस पर कोई चैनल बिल्ड करके इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं बना सकते थे। सो पिक अप अ टॉपिक विच सॉर्ट ऑफ रेजोनेट विथ यू। दिस इज सेम फॉर entrepreneurship, this is same for content creation, this is same for freelancing, this is even true for the job.
ऐसी चीज़ जिसमें आप अपने लिए वाई ढूंढ सको कि ये क्यों कर रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट अ 2 year 5 year become a unicorn game. It's a game of सर्वाइवल. आपको इस रेस में टिके रहना है जब तक कि आपके साथ जो दूसरे वाले लोग हैं वो परेशान होके कि यार ये तो थकता ही नहीं है, जब भी मिलो ये अपनी फील्ड के लिए उतना ही पैशनेट है, उतनी मेहनत से काम कर रहा है, उतना ही लगा हुआ है, नए नए इनोवेशन देख रहा है. बाकी जगह आप देखोगे चलो यार थोड़ी कंपनी बड़ी हो गई, चलो मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, मेरी जगह CEO ले आता हूँ, फिर उनमें उतना पैशन नहीं है बिकॉज दे आर आफ्टर ऑल चेजिंग द शेयर प्राइस, एंड देन समवेयर इनोवेशन स्टॉप, समवेयर कंपनी ग्रोथ ड्विंडल हो जाती है, विजन लूज हो जाता है एंड सो ऑन. बट व्हेन यू सी अ ड्रिवन फाउंडर, उसी के हर टाइम वो उसमें लगा हुआ है. अगर आप से जेफ बेजोस का इंटरव्यू आज भी सुनते हो, ही इज स्टिल फॉलोइंग दैट फिलोसॉफी के कस्टमर मेरे लिए पहला आता है. वो अभी भी ध्यान रखता है कि अगर उसको आप अभी भी मेल करेंगे तो ही स्टिल रिप्लाइज टू योर ईमेल कि ये अगर कोई कस्टमर का इश्यू है, बिकॉज ही स्टिल पैशनेट अबाउट दैट प्रॉब्लम कि मुझे कस्टमर के इश्यू को सॉल्व करके उनको बेस्ट बाइंग एक्सपीरियंस देना है. सो इफ़ यू हैव सम डीप रूटेड डिज़ायर कि मुझे करना है वो मुझे क्यों करना है, तब आप उस फील्ड में लगे रहोगे. बिकॉज मनी कैन नेवर बी अ मोटिवेशन. आपने ऐसा भी देखा, मेरे बैचमेट्स हैं जिन्होंने $multi-billion स्टार्टअप बनाए, एंड देन ऐसे भी लोग हैं मेरे सर्कल में जिनके वो स्टार्टअप की वैल्यू $multi-billion से वापस कहीं पे आ गई. आई स्टिल फाइंड फ्यू पीपल फाइटिंग फॉर देयर स्टार्टअप स्टिल, एंड सम पीपल हैव लेफ्ट. बिकॉज अगर सिर्फ मनी मोटिवेशन होगा ना तो वो पैसे के साथ ही कम और ज़्यादा होता चला जाएगा. लेकिन इफ़ यू हैव अ बिगर मोटिवेशन, फॉर एग्जाम्पल यू आर पैशनेट अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड योर स्टार्टअप इज डूइंग द सेम, डजेंट मैटर उसका वैल्यूएशन 1 मिलियन या 100 मिलियन या 1 बिलियन है, आप फिर भी उस प्रोजेक्ट के पीछे लगे रहोगे. और जितने लंबे समय तक लगे रहोगे अपने आप आपके पैशन के साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे. जो स्टार्टअप की टीम बिल्ड होती है ना, वो प्राइमरली पैसे के कारण नहीं होती, वो प्राइमरली एक पर्पस के कारण होती है. हर जना कहीं ना कहीं अगर उससे लगता है कि ये बंदा बहुत मतलब पर्पस ड्रिवन है और मुझे भी उसके विजन में, उसके पर्पस में अपना पर्पस मिलता है, तो लोग उसके साथ अच्छे से अच्छे लोग जुड़ जाते हैं. हमने एक ओशन क्लीनअप करके एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उसका फाउंडर सम स्टैट ऐसा सरनेम है उसका, छोटा टीनेजर था जब उसने ये विजन अपना बताया था कि मैं ऐसी बोट बनाना चाहता हूँ जो ओशन में घूमेगी और उसके पीछे एक ऐसा रिबन होगा और वो ओशन को क्लीन करेगी. He neither has the technical capabilities nor the team nor the funding. He was just a teenager, but उसका एक vision था, and that with that vision not only came funding but the topmost engineers, the project managers of the world, and all of them started cleaning oceans. And today वो मतलब millions of kgs of trash clean कर रहे हैं every single year from the ocean. So just find that purpose and stick to it. टीम, पैसा, प्रसिद्धि, सब कुछ आपके साथ आता रहेगा. दैट्स ग्रेट. सर, जैसे आपने अभी हमें सारे स्टेप्स बताए थे कि हाउ डू वी स्टार्ट आवर इन्वेस्टमेंट जर्नी. आपने बताया था कि ऑप्शन फ्यूचर्स आर वेरी very risky, and we should do it when we are at that advanced level. But sir, as per SEBI, there are 90% of people who lose their money. You just answered कि वो reverse start करते हैं, right? But if you have accomplished to that level, advanced level तक आप आ गए हो, आपको option trading start करना है, how do we enter into option trading? सबसे पहले जो 90% वाला डेटा है ना, डेटा ही गलत है. मैं बताता हूँ क्यों. सेबी सही डेटा दे रही है पर वो गलत क्यों है. सपोज करते हैं मेरे पास 500 करोड़ का पोर्टफोलियो पड़ा है. काफ़ी सारे ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए. तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शंस में ट्रेड डाल रहे हैं जस्ट टू हेज देयर पोर्टफोलियो. दे आर बाउंड टू मेक लॉस. उन्होंने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस में हमेशा जो प्रीमियम पे करते हैं वो लॉस ही होता है, तो उन्होंने ये इंश्योरेंस लिया है. तो बिकॉज उन्होंने इंश्योरेंस लिया है तो काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं. तो जो 90% वाला डेटा है, प्रोबेबली अगर हम इसको हटा देंगे तो ये डेटा 65-70% तक आ जाएगा कि 65% पीपल आर लूजिंग, अदर्स आर विनिंग. मोर देन दैट, आप किसी फील्ड में चल जाओ. आप सपोज अपने क्लास में जाते हो, क्लास में आपको कितनी रैंक मिलती थी? टॉप 10. यूनिवर्सिटी में टॉप 10. हर जगह टॉप 10% को ज़्यादा मिलता ही है. अगर 90% लूज करे तो टॉप 10% कमा भी उतना ही ज़्यादा रहे. सो इट इज़ गेम ऑफ स्किल. यहाँ पे आपका कितना स्किल है, कितनी आपकी स्टडी है, उस पर डिपेंडेंट रहता है सारी चीज़ें. इट्स अ जीरो सम गेम. अगर कोई लूज़ कर रहा था तो कोई कमा रहा है.
अगर 90% लोग भी लूज कर रहे हैं, अभी हम मान ले तो 10% कमा रहे हो, 10% बहुत कमा रहे हैं, यही मोटिवेशन होता है बाकी 90% का कि हम भी उन 10% में आ जाएंगे। इसीलिए आपको उस 10% में आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इंडिया में मेहनत करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, सपने देखने वाले लोग बहुत हैं। सपने और हकीकत में मेहनत की एक बीच की दीवार होती है जो पार करना बहुत मुश्किल होता है। जिसने वो दीवार पार कर ली वो सक्सेसफुल हो जाता है। सो बहुत सिंपल सी जवाब सिचुएशन है। आप एफ में काम करना चाहते हो, पहले आपके बेसिक सॉर्ट करो, अपने गोल्स मैपिंग करो, गोल को प्लान करो, म्यूचुअल फंड SIP से प्लान करो, उसके बाद आप एफ करना स्टार्ट करो। स्टार्ट स्लो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। अब तो सरकार भी चाह रही है कि आप नहीं करो, क्यों? अभी वीकली एक्सपायरीज बंद हो जाएगी अक्टूबर से। वीकली एक्सपायरी बंद होने के बाद जो अभी कॉन्ट्रैक्ट 6 लाख में हो जाता है वो 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वैसे भी ऑप्शन सेलर्स जहाँ पर सबसे मेजर लॉस होता था वो तो बंद ही हो जाएगा, बिकॉज 30 लाख का मैं बोलूँ कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। तो मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स चले जाएंगे। रिटेल क्या, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ कि इवन अपर मिडिल क्लास भी खत्म हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा फ्यूचर ऑप्शंस। तो काइंड ऑफ फ्यूचर ऑप्शन सिर्फ हेजिंग के लिए यूज हो पाएगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। अब जो बड़े लोग हैं जिनका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, 50 करोड़ का पोर्टफोलियो, 5 करोड़ का पोर्टफोलियो, प्रॉब्ली वो अभी भी करेंगे ट्रेडिंग। पर ये क्वांटम ऐसा मुझे लग रहा है कि सरकार भी चाह रही है कि धीरे धीरे कम हो जाए और स्ट्रक्चरली कम करने की कोशिश करी जा रही है, जिसका आपको रिजल्ट इम्पैक्ट डेटा नवंबर से चेंज होता हुआ दिखेगा। Okay. So thank you, sir. We got some really amazing insights from both of you. Thank you for being a part of our podcast. थैंक यू। Thank you.